Assalamualaikum. This is Aisha Abdullah from Art Park Podcast, and with me today is Zara Waheed. Zara is a fine artist and a painter. She is an art educator as well. तो आज हम ज़ारा से बात करेंगे और ज़ारा की आर्टिस्ट जर्नी एक्सप्लोर करेंगे जी ज़ारा Assalamualaikum. वालेकुम सलाम टॉक अबाउट yourself, your art, your journey. Okay, so I'm by training an artist, and by profession I'm an art educationist, and I started my journey as an art educator 10 years ago. I did my BFA with major in painting. So I started this journey with teaching. I started teaching uh, from school students, and after that, I got a chance to pursue my higher studies. Postgraduate, I did my MPhil in Art and Design Education from PIFD, and that is where we met. True, we have been together in our journey of MPhil art and design education. But obviously, we come from different perspectives and different fields, and knowing Zara as an artist has been incredible. And today, I really want to know and explore all those hidden aspects behind what was the point when you knew you are going to become an artist, and what was the point when you thought कि अच्छा बस आर्ट को परस्यू कर लेना है जिंदगी अब आर्टिस्ट के तौर पे गुजारनी Okay, so I think this talent was discovered by my parents, my family, and they figured out that she's an artist. और I had the skill. और बचपन में जिस तरह होता है कि अच्छा बच्चा जो है he's or she is more into drawings and creative stuff. I would always spend my time, creating some craft works, drawing, and I used to, I love to draw figures. More like I used to have Barbies or I used to draw them. So there was a point when I used to cry because I couldn't draw feet. That's the toughest or most complicated part of human cute anatomy that to draw. So वहाँ पे जाके I used to get stuck. और उसके अलावा I had an interest and love for literature because my family, there are many people who are into this into the literature subject, और उनकी field भी थी. Like my mom is from a literature background, my sister is from literature background. So I think जो creativity वाला element था और जो imagination वाला element था, that is in me, in my genes. और हाँ, I was not very good. I would say that there's so much going on in my mind as a kid as well, that I could not find words to express my imagination, but I could, you know, draw that. और जो चीजें एक सेंटेंस या वर्डली एक्सप्रेशंस जो थे वो पोर्ट्रे नहीं कर सकते थे. आई यूज टू फाइंड आर्ट as a medium to express my imagination and what was going on in my mind. Because if there's some mood, I could, use some colors and mix them and create a set mood. Like you can find proper word to, express that mood. So that is when I actually wanted to pursue arts as a serious field. that is Yeah. so insightful और आपकी पूरी बात सुन के जो है वो it's a true depiction of that how an artist or a creative person is truly formed because Yeah. it doesn't just happens. And for all those artists out there and the young peeps who are struggling in finding the career, it never just comes. Yeah. You need to build onto it, you need support, and you need those people who can appreciate you for that what you are doing. तो इस बात से अगली बात निकालते हैं ज़रा. I want to know that what were your themes and the artist style that develops over the years, and it doesn't just suddenly comes because earlier you were into figure drawings, and from figure drawings then you develop your own artistic style, and that I have seen your work. तो उस स्टाइल को बनाने में, थीम्स आइडेंटिफाई करने में, उन थीम्स से मीनिंग मेकिंग करने में, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू एंड हाउ वाज योर जर्नी विद दैट? Okay. So it's a very, not easy to actually tell कि मेरा एक style क्या है, because I have a lot of mood swings.
and my mood swings actually are shown in my even handwriting. मेरा एक पेज पे जो हैंड राइटिंग और मेरे दूसरे पेज पे हैंड राइटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है बिकॉज मेरे मूड स्विंग्स ऐसे स्विच करते हैं सो दैट इज द सेम केस मेरे आर्ट आर्ट में भी व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडिंग आर्ट उस वक्त व्हेन वी हैड टू डेवलप आवर थीसिस उस थीसिस में भी देयर वर सो मेनी सब थीम्स के एक आर्ट वर्क आई कुडंट क्रिएट सीरीज डेवलप सीरीज जबकि सीरीज आपने क्रिएट करनी होती एक आर्ट वर्क में मेरा कोई टोटली डिफरेंट थीम चल रहा है और कंटेंट चल रहा है तीसरे में जो है ना टोटली डिफरेंट चल रहा है सो दैट इज समथिंग जो मुझे खुद एक स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग और यू आर डेवलपिंग योर थीसिस उसमें आपने यू हैव टू स्टिक टू योर टॉपिक और एक सीरीज आप चलानी थी एक नैरेटिव डेवलप करना होता है सो मेरा नैरेटिव डेवलप नहीं होता था मेरे हर एक कैनवस पे एक दूसरी स्टोरी चल रही थी और वो मुझे एक थर्ड पर्सन को नहीं पता चलता था इसमें है क्या जब तक उसको बताया नहीं जाता था और मैं कहती थी नहीं इसमें है सो उस एज सच मेरा उसका कोई थीम नहीं है दैट इज व्हाई आई नेवर आई एम नेवर इनटू दिस कि मैं कोई एक ही थीम के साथ रहूं मेरा इवन कैनवस पे जो ब्रश स्ट्रोक होता है वो भी डिफरेंट होता है अगर थीम की अगर उसका एक स्टाइल की बात करें तो मेरा जो है बहुत रियलिस्टिक नहीं होगा लेकिन आई लाइक ब्लेंडेड वर्क उसको मैक्सिमम उसको आई लाइक टू ब्लेंड एंड try to get the maximum realistic उसकी outlook और at times when I'm in mood तो उसकी I would just put big dabs और उसमें strokes और to get the impact वो because वो फिर मेरे mind और वो it actually depicts that so मेरा जो आर्ट वर्क है वो शायद पब्लिक के लिए नहीं है और शायद यही वजह है कि I never wanted or pursued these exhibitions because I wanted to keep this for me जो मेरा आर्ट वर्क है that is my journal मैं अगर जितना like people keep the journals they are writing and writing and writing and keeping it with them मेरे जो कैनवस है मेरा आर्ट वर्क मेरे घर में लगा हुआ है और मेरी स्केच बुक्स भरी हुई हैं सो मेरा जो एक्सप्रेशन है आई जस्ट वांट if I want to vent I just take a canvas or take a scrapbook or a sketchbook and I just do it and I just keep it back so this is what I explain my style as it's not for like any other person because people cannot put a finger कि इसका स्टाइल क्या बिकॉज आई कांट टेल कि मेरा स्टाइल क्या मेरा स्टाइल मेरा मूड है सो दैट इज व्हाट हाउ आई कैन डिस्क्राइब द बेस्ट Very nice. So insightful, obviously, coming to know that what Zara is. yes Your art is the depiction of who you are. yes exactly For me, that is art. That you need to just express what all goes inside you, and it should resonate, or it might resonate with others as well. So maybe Zara, I would also want to know your definition of art. So my definition of art is something that is, doesn't bound you. Art should be easy, and art shouldn't have any principles, any rules and regulations. Art is what you are, and that is the. I think it's not. I won't say it's my definition. I'm sure many people say that this is art, but yes, if somebody has said this before, I agree that what you are, your art should depict that. It should be original. It shouldn't be like asking you to like the jurors come, they guide you, do this and do that. But I think art should be original, pure, or there should be margin of human errors because that is what we are and that's what art should be. We shouldn't seek perfection into art. Exactly, exactly. Because if we start seeking perfection in art, I think it will lose its definition. Art will become design because designs have rules, design have principles. Okay, so that is what I don't want to do with art. If somebody tells me to do this, then I'll just drop it and leave it. No,
I'm not going to do that. हाँ, Because the then free will that the art offers you, yes, तो वो free will अगर आपकी खत्म हो जाए तो वो तो आर्ट खत्म हो हाँ, जाएगा. very very nice definition and a very nice statement. क्योंकि फ्री विल आपकी आर्ट इज फॉर सोल्स बेसिकली ना, तो अगर आपकी सोल फ्री है और आपकी सोल इज मेंट टू बी फ्री, Yes. आपने उसको भी केज कर दिया, जैसे आपने सारी चीजों पे स्ट्रक्चर डाल दिया. So we also had this discussion earlier, and I came to the point that art is a free expression Yeah. in very short terms and short words. अगर हम इसको explain करें. Zara, you have been teaching as well. Yeah. You were an art educator, and we did study pedagogies together, and we tried developing curriculums together. Oh yes, Yeah. we did that. Yeah. We developed a So curriculum. I want to recall a bit of those times, and ask you about that. Um, did teaching inspire more of your art, and was it related? And it always has been something, a part of your that side and a part of your this side. Um, I think when I did my arts, I was not sure कि I'll come into teaching because हर एक आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि जी आर्ट आर्टिस्ट बन गए, अब इसके बाद वो एग्जीबिशंस करेगा, आर्ट बनाएगा और बस वो एग्जीबिशंस करेगा. लेकिन when I came into teaching, I think my perspective did change. मेरा जो आर्ट एजुकेशन था वो चेंज हो गया, एंड बिकॉज आई वाज टीचिंग बॉयज, आई स्टार्टेड माय करियर एंड इट वाज ऑल बॉयज स्कूल. सो आई उसमें ये था कि बॉयज डिडंट वांट टू स्टडी आर्ट, दे डिडंट वांट दैट आर्ट लेसन. फिर आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि व्हाई आर्ट इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम, लाइक बच्चे उससे क्यों भागते हैं, स्पेशली द बॉयज. वाई उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा एक नैरेटिव डेवलप हुआ, और आई जस्ट फाउंड आउट कि ये नैरेटिव मेरा नहीं है. बाहर जो अब्रॉड अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में इट इज एक्चुअली बीइंग टॉट एज आर्ट एज एन एजुकेशन. ठीक है, आर्ट को हमारे यहाँ पे आर्ट को एज एन आर्ट पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, जबकि आर्ट स्कूल लेवल पे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा, बिकॉज यू आर आस्किंग स्टूडेंट के बेटा ये सेब है, ये इसको ड्रॉ करो और उस पर कलर करो. स्टिल लाइफ में जबरदस्ती करना. सामने रख दिया जाता है, एक गमला रख दिया जाता है. अब क्लास 6-7 के बच्चे को क्या इंटरेस्ट है भाई गमला बनाने में? ये तो हम लोग अपने फाइन आर्ट्स के टाइम पे करते थे. वी नीड टू गेट द परफेक्शन, वी हैड टू मेजर इट, वी हैड टू लर्न द शेडिंग्स, तो वो हम करते थे क्योंकि हमारा वो फील्ड था. अब आप हर बच्चे को जिसमें मल्टीपल, मतलब देयर इज अ डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी सिटिंग इन योर क्लास एंड यू आर आस्किंग देम कि बेटा तुम लोग ये बनाओ, सो वो नहीं होता. लेकिन आप अगर एक एक्टिविटी प्लान कर रहे हो जिसका आउटकम एक प्लान है, कोई देयर इज अ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि अच्छा इस एक्टिविटी से बच्चे ने ये सीखना है, हो सकता है टीम वर्क सीखना है, देयर इज कोलैबोरेशन दैट दे आर लर्निंग थ्रू दैट एक्टिविटी. और आप फिर उसको एक्टिविटी ऐसे प्लान करो कि वो एक बजाय जिस तरह बच्चे ग्रुप वर्क बैठ के करते हैं, दे आर गिवन अ डेफिनेशन ऑफ, कोई एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि बेटा इसके ऊपर तुम ऐसे लिखो मिलके. इंग्लिश क्लास है, सो व्हाई कांट एन आर्ट क्लास बी लाइक दैट, कि एक बच्चे को एक्टिविटी दी जा रही है जिसमें बच्चा अपनी स्किल्स यूज कर रहा है, मे बी कटिंग, ड्राइंग, पेस्टिंग, कलरिंग, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्टिव, जिसके बाद बच्चे को खुद एक्साइटमेंट होगी कि अच्छा मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया. सो मेरी डेफिनेशन उसके बाद एक आर्ट एजुकेटर से, आर्ट एजुकेशन से चेंज होके एजुकेशन थ्रू आर्ट बन गई. एंड दैट इज व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू माय एमफिल, बिकॉज उससे पहले आई वाज डबल माइंडेड इफ आई वांटेड टू परस्यू माय एमएफए, और लेकिन I took my time, and after 5 years I got this opportunity. I found this opportunity that there is this program being offered, where you can actually, you know, learn about this, because as you can also tell, we developed the curriculum. We got a chance to explore other frameworks जहाँ पे PBL पढ़ा रहे थे, project based learning, art education through art, and that stuff. So I think
हमारे कंट्री में अभी ये जो कन्वेंशनल लर्निंग है उससे अभी निकलने में बहुत टाइम है, और द प्रोग्रेशन जो हमारी है इस वक्त, अब जो बच्चे अब हैं, दे हैव वेरी लिमिटेड concentration span, because they are more creative, they are hyper, and they need such frameworks जहाँ पे मे बी कुछ प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाएं। देयर आर स्कूल्स जहाँ पे ये करवा रहे हैं, बट आई थिंक दिस नीड्स, हमारा जो एक है ना क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, आई थिंक इट्स टाइम कि इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। और पब्लिक लेवल पे, पब्लिक स्कूल्स लेवल पे भी, इवन प्राइवेट में तो कर रहे हैं, public school level पे भी the curriculum needs to be changed and some project based learning needs to be introduced. Art is just an expression, it's just one field. STEM है, there's STEAM, e-super, there are other things that are being introduced as well जो पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है। So I think कि with time एक आर्टिस्ट से आर्ट एजुकेटर का बीच में बहुत चीज़ें मैंने देखी, एक्सप्लोर की हैं, और यस, माय फिलॉसफी हैज चेंज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। Not only changed, I can see evolved for Evolved, better. yes. Better, evolved for a lot better, mashallah. I see, mashallah, very fine educator sitting alongside me, and I really appreciate her saying that finally it is the time that education should really change, Yeah. and for a better good, for a bigger good, क्योंकि हम वही वाले तरीकों से मजीद सप्रेशन क्रिएट करें, हम सोल आर्टिस्ट या हम फ्री स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो एग्जैक्टली अपनी बात को विदाउट फिल्टर्स कम्युनिकेट कर सकें, और हम आर्ट है ही कितनी फ्री डायनामिक चीज़ कि आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा heights achieve karna is something that we should be doing, and it should be practiced in Pakistan as well. And we as students, as teachers, as art educators, as artists, हम दोनों की यही अप्रोच है, और बहुत से हमारे सर्कल के लोग हैं जिनकी यही अप्रोच है। Yep. So Zara, my next topic is regarding motivation. Artists को प्रैक्टिस करने के लिए जो मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, फिर आर्ट ब्लॉक्स आते हैं, फिर दिमाग ब्लॉक्स आते हैं, फिर बंदा फंस जाता है, इस तरह के इतने सारे फैक्टर्स जो है सब आर्टिस्ट जो है वो इन ये सारी सब चीजों क्या से आता है? गुजर रहे हैं। तो आपकी मोटिवेशन क्या है जब whenever you face such kind of blocks and whenever there is a downtime, how do you seek your motivation? Um, okay, so what I do is, my go-to medium as an artist is pencil. ठीक है? So if I am stuck somewhere, if I want to have an escape, so what I do is I take out my sketch pad, I take out my pencil, and I would, over the time, I am just taking screenshots and saving some, reference images. And for that time period, कि अच्छा, अगर if I need to have my me time, or if I need to have an escape, so I just take that sketchbook and the pencil, and I would just start drawing and create work. But उसमें भी blockages आते हैं। उसमें ये आता है कि अगर एक आर्ट वर्क मैंने शुरू की है, उसकी सिर्फ मैंने प्लेसिंग की है, और वो 2-2 साल तक वो प्लेसिंग, वो स्केचबुक में दोबारा खोलती नहीं हूँ। ठीक है? और क्योंकि आर्ट करने के लिए भी आपको एक माइंड सेट चाहिए, आपको, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए हो कि दैट यू आर फोकसिंग ऑन दैट वर्क, बिकॉज आप जबरदस्ती आर्ट नहीं बना सकते, यू कैन फोर्स दैट। आप, पता चल जाता है आपकी एक लाइन का जो एक, उस पे जो पेंसिल का प्रेशर होता है, वो पता चल जाता है कि ये कितने एग्रेशन में बना है, या कितने रिलैक्स मूड में बना है, या कितने फन मूड में बना है। सो इवन अ ब्रश स्ट्रोक, a pencil line, it can actually tell कि आपका ये आर्ट वर्क किस मूड में बना है, किस टाइम फ्रेम में बना है। सो व्हेन इफ आई एम नॉट इन मूड, आई डोंट डू दैट। मेरी मतलब, लाइक, दिस पेंटिंग took like 4 years
Wow. It's not like that when we studied that Mona Lisa was Leonardo took 4 years to complete Mona Lisa, Hmm. and still he considered it incomplete Hmm. because एक आर्टिस्ट जो है हमें नहीं पता कि उसके माइंड में क्या है, उसकी ब्लॉकेजेस क्या हैं, व्हाई ही डजंट कंसिडर इट कंप्लीट. सो मेरे साथ भी ये था कि दिस मैंने इसको बेस लगा दी हुई थी, इट वाज लाइक पर्पल, Hmm. और बिकॉज आई इट वाज मोनोटोन, तो उसमें मैंने 4 साल तक इस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाया बिकॉज, और ये मेरे कमरे में पड़ी हुई थी, मैं उसको रोज देखती थी, मट्टी पड़ रही है, मट्टी पड़ रही है, मट्टी पड़ रही है, लेकिन वो नहीं था. नहीं करना था, बट when I wanted to complete that, I completed it. Hmm. So, uh, so ये चीजें हैं कि ब्लॉकेजेस आते हैं, Hmm. लेकिन you should not be forcing yourself to create art in that time अगर नहीं करना. Hmm. अगर if अगर उस ब्लॉकेजेस से निकलने का escape ही आपके पास आर्ट है, then I think one should pursue that. Hmm. हर किसी का एक प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट है, Hmm. बट True. मेरा प्रोसेस करने का तरीका आर्ट है भी और नहीं भी है. मेरा जो प्रोसेस करने का तरीका है दैट इज स्केचिंग. Hmm. मैं पेंटिंग जो है बहुत टाइम निकाल के एक मूड बना के तो वो करती हूँ. सो दैट सॉर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट आई एम. Interesting. या Very interesting. Zara, which piece is very close to your heart? Is it this that took 4 years? नहीं, देयर इज अ पेंटिंग, Okay. आई शो यू. वो एंट्रेंस में लगी हुई थी, अगर आपने देखी हो. Mhm. इट्स अ बैक ऑफ अ वुमन Mhm. Okay. एंड इट्स अ वायलिन. Oh. So, so हाँ, I think it was named the Solitude. Mhm. So it's the back of a woman, Mhm. and it's actually disguised as a violin. Right. So Okay. I'll show you that. Okay. Wonderful. And Zara has a beautiful place, and you can see, the monochromatic themes over here. I really like your aesthetics, your color choices, and Thank you. that stands out as an artist, and as a since you are into design as well as into education as well. So your aesthetics जो है यही तो stand out करते Stand हैं. out. Zara, my next question to you is कि अब goals क्या है आगे? Goals मेरे ये हैं कि अल्लाह ने चाहा तो definitely I plan on publishing my articles. और ये तो बहुत अरसे से हैं, but it's just that you need to take up time, and time is something that as a regular working person I can't find, because आपको you need to read articles, you need to explore, you need to find a topic, and of course you know how the articles are done. Or I think in future I'll definitely be creating artwork more, or but still not sure if I'll ever be exhibiting them. Yeah, I love the idea of you that it's not commercial. I'm not commercializing with art. So वो जो communal mindset है, we are हाँ, not bringing that, and we ठीक are है. just exploring art क्योंकि art has that tendency कि आप उसको सुबह बैठे explore करें, शाम में बैठे Exactly. ना भी करें, art आपको freedom देता है. Freedom हाँ, देता है. And I think art is not limited to just हाँ, canvas and paints and हाँ, brushes. Art आपकी लाइफ में ऐसे काफी मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप यू कैन रिलेट इट विद आर्ट. आपकी अगर एस्थेटिक्स है ना, तो आप किसी डल चीज के अंदर भी यू कैन यू नो उसको एक लाइफ दे सकते हो. नॉट एज कि आप उसको यू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, बट यू विल गिव इट अ पर्सपेक्टिव. आई थिंक आर्ट जो है ना, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. यू वर आस्किंग कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है. आई वुड से कि आर्ट की डेफिनेशन एक पर्सपेक्टिव भी है. आप एक एक पत्थर भी पड़ा है ना, तो लोग उसको कहेंगे अच्छा पत्थर पड़ा, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी Viewpoint लाइफ क्या है? एक्सपीरियंसेस क्या है कि वो पत्थर आपके लिए आपको किस चीज से रिलेट कर रहा है. सो आई थिंक आर्ट जो है ना, इट्स अ पर्सपेक्टिव. सो या एज यू सेड कि हम सुबह रात दिन कभी भी वी इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन थिंग. आर्ट इज विद इन यू. True. It's your perspective.
टोटली एग्रीड। ज़ारा, कोई आर्टिस्ट है जिसके साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहती हो? एनी सच थॉट्स? हाँ, I loved the work of मशकूर रज़ा, मशकूर रज़ा वंडरफुल। साहब का, और because he paints horses and women, और मैंने I got a chance to write an article on his works. So उसकी जो, because I love horses, ठीक है, और उसका significance एक मैंने डेवलप किया था narrative, then women in his works, and his canvases are mostly white and big strokes of red and blue, वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है। So वो जो red का color, he had these paintings where this horse and this woman and this big stroke of red. I mean, आप उसको जब स्टडी करते हो तो पैशन, द आई डोंट नो व्हाट people think, but I love that his Red work. is the color of passion, And then there's this blue as well. So I just loved, because I love monotones. I don't मतलब it sounds very weird to coming from an artist that I don't like colors. I don't like colors. मतलब कि you won't see me wearing lots of colors. I'll be wearing solids or very subtle palette. क्योंकि इतनी जिंदगी रंगों में गुजारनी होती है, इतनी मिक्सिंग इतनी मिक्सिंग की होती है कि आपको 24 कलर्स ऑयल पेंट्स के नाम भी याद करने पड़ते हैं, और कि ये कौन सा कलर है, क्रिम्सन, स्कारलेट, और इस कलर में क्या क्या फर्क है। सो रेड्स के भी टोन्स के नाम, बट दैट्स नॉट अ रीजन। आई थिंक कलर्स जो होते हैं ना, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। व्हाट आई बिलीव, आई थिंक इज, कलर्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट अगर काम है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट को आप, कोई भी जो थर्ड पर्सन है, देखने वाले हैं, उसको अपने कलर्स दे सकते हैं, लेकिन अगेन देखने वाला अपने पर्सपेक्टिव से उसको देख सकता है ब्लैक एंड व्हाइट चीज को। इंटरेस्टिंग। रिमेम्बर कि किसी जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। अब आप, अगर किसी ने रेड ड्रेस पहना हुआ है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है, आप उस ब्लैक एंड व्हाइट में जो ड्रेस है, आप उसको येलो देखोगे, मैं ब्लू देखूंगी, जो पर्पल देखेगा। सो आई थिंक दैट आई वांट दैट, आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड, नॉर आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट एनीवन। कीप इट ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और उसमें जो कलर्स हैं, हाँ, एक एज अ स्टेटमेंट यू कैन ऐड अ कलर, और उसका एक फिर स्पेसिफिक, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग उसका मीनिंग होना चाहिए, और वो मीनिंग वो होना चाहिए जो आप उसे देना चाह रहे हो, ठीक है। सो मेरा काम भी ज्यादातर इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं पेंसिल और स्केचिंग शेडिंग में इसलिए आ गई बिकॉज आई लव टू सी थिंग्स दैट वे। बिकॉज अगर मेरा मूड बहुत कोई अच्छा है, या मैं बहुत कोई उदास मूड में बैठी हूँ, तो मैं उस आर्टवर्क को, उस जो बैठी हुई ना, वो आर्टवर्क मेरे मूड के मुताबिक सेट हो जाए। अगर मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत फन मूड में बैठी हूँ, और एक बड़ी डल सी पेंटिंग पड़ी है, तो उसको देख देख के ना मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आई विल बी एबल टू, मतलब कि उसको ब्लेंड इन कर लूंगी। सो मेरा जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट है, वो ये हो वेरी नाइस। आई थिंक ये वही आर्टिस्ट का जो पर्सनल कनेक्शन है आर्ट के साथ, योर ओन पर्सनल फिलोसफी विद दैट। तो आई थिंक योर पर्सनल फिलोसफी मैटर्स अ लॉट। ज़रा लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे कि यंग आर्टिस्ट और समवन हु इज स्कैर्ड राइट नाउ, हु इज इन एक्सप्लोरिंग स्टेज, और अभी वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज ये टाइम सब पे आता है। जो ये डरने वाला है ना, जब इसमें आपका काम नहीं निकल रहा होता, एक लाइन बोली जाती है, काम नहीं निकल रहा, वो काम नहीं निकलता आपका माइंड में। जब आप स्टार्ट करते हो अपना टॉपिक, अपना थीसिस, और ये अपना एक लाइन डेवलप कर रहे होते हो, तो उसके बाद आपको होता है "Shit, काम नहीं निकल रहा"। काम जो है ना, एक आर्टिस्ट का काम जो है ना, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से निकलता है।
Hmm. मेरी there was a time when अच्छा, so I did my thesis on dream, basically fantasy. और उस फैंटेसी में मेरा जो मिनी थीसिस था दैट वाज टेरिबल, ठीक है। Hmm. और अगेन एज एज साइड कि मेरी हर कैनवस पे एक अलग कुछ चीज चल रही थी, उसमें नैरेटिव नहीं था। लेकिन फिर आई एक्सप्लोर्ड, आई रेड द फिलोसफीज, आई वॉच्ड मूवीज, आई डिड पता नहीं क्या क्या क्या, बट देन थोड़ा आप एक्सप्लोर एक्सपीरियंस, सो आई फाइनली डिड माय जो मेरा मेजर थीसिस था आई डिड ऑन टेरोस। और टेरोस की सीरीज मैंने क्रिएट की थी, Hmm. बट उसमें एक नैरेटिव डेवलप हुआ था। उसमें मेरे दो तीन एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट किए थे। देयर वाज माय सिग्नेचर, ठीक है, मैंने अपना सिग्नेचर इम्बेड किया था विद ड्रीम कैचर्स। ड्रीम कैचर की अपनी फिलोसफी थी, सिग्नेचर्स की अपनी फिलोसफी थी, बट एक नैरेटिव क्या डेवलप किया था। आई पिक्ड 7 टेरोस और उनको मैंने डिजाइन किया था Hmm. with those elements. So वो फेज मेरे पे भी आया था। मेरा रोज के हमने 50 रफ स्केचेस चेक कराने थे, जो मेरा एडवाइजर होता था वो ऐसे करके फाड़ता था मेरे सामने। और वो टाइम होता है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन Hmm. अब मुझे कोई कहेगा ना Hmm. कि फैंटेसी के ऊपर थीसिस लिखो या बनाओ, आई थिंक आई हैव लोड्स ऑफ आइडियाज Hmm. टू क्रिएट और पोर्ट्रे। अब मेरा ख्याल से जो मेरा उसका फैंटेसी का नैरेटिव था वो अब चेंज हो गया। Hmm. ड्रीम्स का जो नैरेटिव था वो चेंज हो गया। ड्रीम कैचर का जो सिग्निफिकेंस था वो चेंज हो गया। Hmm. क्यों? क्योंकि इन 10-11 सालों में बहुत कुछ आप आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। Hmm. अगेन एज I सेड कि आर्ट इज अ जर्नल। Hmm. तो आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अब विद टाइम जो है वो आपका आर्ट निकल आए। Hmm. सो आर्ट इज अ जर्नी, और ये चलती ही जाएगी, ये रुकेगी नहीं, और ये बेहतर से बेहतर, इट विल रिफाइन विद टाइम। Wonderful. सो Hmm. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बेबी स्टेप आप लो, और Hmm. फिर करते 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 यू विल बी एबल टू जस्ट वॉक एंड देन रन एंड जंप। सो दिस Wonderful. इज द जर्नी ऑफ आर्ट। Wonderful. That is so inspirational at the end, और I think it helped me as well. Just ओह ग्रेट। बहुत खूबसूरत बात. With this, I would end the conversation, Zara. Wonderful having you. थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग ओवर। Thank you for giving me the time, showing me your art and this beautiful land of artists. ओह यस। So, signing off from Artbark podcast and letting you all know that please the grounds are open for all the artists and solo artists जो अपना काम दिखाना चाहते हैं, feature होना चाहते हैं Artbark के साथ. So here we are with Zara Waheed today, and there are so many more artists who would want to know their journey and would want to explore from her journey. So the grounds are always open, and Aisha Abdullah signing off from Artbark podcast. Thank you so much.